संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। न जाने क्यों पर इस धरती पर 2 प्रकार के लोग हैं। एक
वे जो भगवान से कुछ मांगते हैं और दूसरे वे जो भगवान को ही मांगते हैं, परंतु दुखी फिर भी दोनों हैं। दोनों कैसे? जो भगवान को मांग रहा है वह कैसे दुखी हो सकता है? ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जो भगवान को मांग रहा है वह बहुत भोला है। इसलिए जो भी कोई उसे भक्ति का रास्ता बताता है वह उसी में लग जाता है और सच्चाई से वंचित रह जाता है और कष्ट भी झेलता है, क्योंकि उसकी साधना सही नहीं होती। कैसे? जी हाँ, आज आप एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जानेंगे। ये हैं बाबूलाल प्रजापति, रांची झारखंड के निवासी। यह कहानी उनकी आध्यात्मिक यात्रा के संघर्ष का वर्णन है। बाबूलाल जी पहले देवी देवताओं की पूजा, अखंड कीर्तन और रामायण सुंदरकांड जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त थे। उनके पास कीर्तन मंडली थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इतनी भक्ति के बावजूद भी न तो भगवान मिले और न ही सच्ची शांति। घर और शरीर में सुख शांति की कमी थी, जिससे वे अत्यधिक परेशान थे। भगवान को खोजने की उनकी तड़प और भगवान की कृपा से एक रात उन्हें YouTube पर संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन मिला। केवल कुछ मिनटों के प्रवचन ने उनकी आत्मा को झंझोड़ दिया और उन्होंने महसूस किया कि यही वह सच्चा ज्ञान है जिसे वे जीवन भर खोज रहे थे। अगले दिन उन्होंने अपने परिवार के साथ रांची के नामदान केंद्र पर जाकर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद बाबूलाल जी को शारीरिक और मानसिक शांति मिली। उनकी लिवर की बीमारी, जिससे वे 20 साल से परेशान थे, पूरी तरह ठीक हो गई। उनके जीवन में सुख शांति आ गई। आइए अब सुनते हैं बाबूलाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल प्रजापति है सर। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम रांची झारखंड से हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैं 3/7/2021 को लिया है। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, संत रामपाल जी भगवान से दीक्षा लेने के पहले देवी देवता की पूजा, अखंड कीर्तन जो हरे राम हरे कृष्ण, रामायण, सुंदरकांड की पाठ, ये सारे ठेकेदारों का ठेका लिया हुआ था और भगवान की खोज में परेशान रहता था। 24 घंटा 48 घंटा का अखंड कीर्तन। मेरा रांची में 2 कीर्तन मंडली था। उतना भगवान का साधना करने के बाद भी हमको भगवान की भेंट नहीं हो रहा था। बहुत जगह हमने भगवान की साधना की, कहीं हमको सुख शांति चैन नहीं था। घर में, शरीर में किसी तरह का सुख शांति नहीं था। सर आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं करते थे, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिले, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी का भगवान के शरण में आने का कारण बना सर जी कि हमको भगवान का चाह था। हमको किसी ने बताया नहीं, लेकिन भगवान का ऐसा प्रेरणा हुआ सर जी। मेरा तो दिनचर्या ही था भगवान को खोजने का। सुबह से शाम, शाम से सुबह, जब नींद टूटता था, बेड से उठता था तो भगवान को खोजता था। प्रवचन, भगवत गीता, रामायण का पाठ 24 घंटा मेरे मोबाइल में बजता था, लेकिन हमको भगवान से भेंट नहीं होता था। लेकिन भगवान को पाने का जब कृपा हुआ, भगवान ने हमारा पर कृपा किया। 10 बजे रात में यूट्यूब चैनल पर हमने संत रामपाल जी भगवान को पाया, उनका प्रवचन सुना और बस 40 मिनट की प्रवचन से ही मेरी आत्मा को भगवान ने झंझोड़ दिया। उस प्रवचन को सुनकर हमको लगा कि कहीं भगवान है। और उसी का सुबह सर जी रांची में संडे का दिन था, सत्संग था। हमने पीली पट्टी का नंबर से फ़ोन 10 बजे रात में ही लगाया था और हमको नज़दीकी नाम सेंटर जो हमारा रांची में है उसका एड्रेस मिला। और सुबह में मैंने जा कर के मेरा पत्नी बच्चा को लेके गया, हम जा कर के वहाँ नाम दीक्षा लेके आए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब पर सत्संग सुना और उनसे नाम उपदेश लिया, तो क्या नाम उपदेश लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? भगवान के शरण में आने के बाद तो सबसे पहला लाभ हुआ कि हमको भगवान का दर्शन हुआ, लाभ मिला। दूसरी चीज़ है, मेरा शरीर लिकलिक था, खाना नहीं पचता था, मेरा लीवर में बीमारी था। मैंने 20 साल से परेशान सा 10 डॉक्टरों से हेमोपैथिक, एलोपैथिक बहुत दवाइयाँ करके थक चुके थे। जो भगवान के शरण में आने से हमको
असीम लाभ हुआ। आज भगवान की दया से घर में सुख शांति है। भगवान के शरण में आने के बाद हमारे पास सत्संग में जाने के लिए भगवान ने 2 चकिया मोटरसाइकिल भी दिया। आज भगवान की दया से रांची शहर में भगवान से प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी भगवान की कृपा से हमें घर बनाने के लिए आज जमीन भी हो गया, जो भगवान संत रामपाल जी महाराज की दया से मिला। माँ की सांस का बीमारी था, माँ विश्वास नहीं करती थी। जब थक हार गई, पिताजी के पास पैसा खत्म हो गया दवाई कराते कराते, तब थक गए पिताजी, तब बोले कि अब भगवान संत रामपाल जी भगवान के शरण में लेके जाओ। हमने माँ को दीक्षा दिलाया, आज उसका जो है 90% बीमारी ठीक हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? अभी सोशल मीडिया में बहुत सारा सेवा चला हुआ है और भगवान संत रामपाल जी महाराज का टीवी चैनल पर भी प्रत्येक दिन चैनल पर सत्संग आता है। उसमें पट्टी पर नंबर चलता है, उस नंबर पर फ़ोन करके नज़दीकी नाम सेंटर का पता लगा के भगवान संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके दीक्षा लेके अपना कल्याण करा सकता है। सर, आपने बताया कि आप पहले बहुत सारी भक्ति साधना करते थे तथा कई संतों के सत्संग भी सुने, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुना? सर जी, हम बहुत पहले से भक्ति करते थे। 2006-7 में अपना गांव में हम ही लोग के अथी पर जग करवाए थे, महाकुंडीय जग करवाए थे। उसी में नाम दीक्षा लिए थे महंत जी से और 15 साल वैष्णव रहा और बहुत भक्ति किया, इतना भक्ति किया कि इस झारखंड राज्य में ऐसा भक्ति करने वाला हम लोग जैसा गिने चुने ही लोग हैं, लेकिन हमको कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। भगवान संत रामपाल जी का वही मैंने बताया कि 20-25 मिनट का जो प्रवचन मैंने सुना, मेरा आत्मा को झकझोर दिया और मैंने तुरंत ही जा करके संत रामपाल जी भगवान के आश्रम में नाम दीक्षा लिया और अपना कल्याण करवा रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज के विषय में समाज में एक धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है सर जी। संत रामपाल जी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, जिससे मनुष्य को असीम लाभ होता है। भक्ति हम पहले भी करते थे, अथाह भक्ति करते थे, भगवान के नाम से ही उठते थे सोते थे, लेकिन शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति नहीं होने के कारण लाभ नहीं मिलता था। और आज संत रामपाल जी भगवान के शरण में आने के बाद सही शास्त्र अनुकूल साधना करने से असीम लाभ प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद सर। सत साहिब सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। यहाँ इन अनाड़ी अज्ञानियों ने वर्ज का अर्थ आना किया है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दे। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस से उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम,
मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझे दे दे, छोड़ दे। परित्यज कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आगे। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना हो, ताड़ना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामी मां सुच, अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, आपे कर देगा। जब हम इसका ऋण दे देंगे, ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहाँ से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है और पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है, या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस दोगे, देते रहोगे टैक्स, किराया, उसको उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र है, ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब ये जो मंत्र है आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहाँ गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहाँ से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा उसमें ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले नो के साढ़े गुरु जी तब सीधा नाम बताते हैं, असी तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, खाक त्रिकुटी में जाते हो। त्रिकुटी को बस बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा लिया तो पहुंच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। हाँ, तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं, ओम तत्सत। ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको, वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जहाँ यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहाँ वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। यानी गुरु का रोल यहाँ से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान लेकिन निमित्त दास रहेगा। तो वहाँ कहेगा कोड, ये वहाँ पर ये धारा 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहाँ रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सतर की जो पूजा अपनी ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। फिर हम जाएंगे, इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे, जब वहाँ अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संग ब्रह्मांड हैं, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहाँ से उसका साधन हमें मिलेगा और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे। वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा। 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे।
वहां जाकर फिर कभी लोग लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्व उत्पादक प्रभु कबीर साहिब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे जनक हैं, यही हमारे सर्वम है। आज का जो शुभ समागम प्रारंभ हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है, ये जानकारी आप जी को देते हैं। इस शुभ समागम का प्रारंभ परमात्मा के यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ये आने वाली ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी पर हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए, हमारे मूल ठिकाने की जानकारी कराने के लिए आए थे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ही आकर हमें ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। इसका जो अन्य कर्म हम करते हैं वो अनिवार्य नहीं है इतने, क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी है। जैसे पशु पक्षी भी विवश हैं, अपने पेट भरने के लिए सारा दिन ताक लगाए बैठे रहते। बुगला सरोवर पर रहता है, मछलियों को खाता है, मछलियां भी अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं। पशु पक्षी भी अपने आहार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है। एक जरूरी कार्य और है जिसका हमें ज्ञान नहीं था, और ज्ञान था तो एक औपचारिकता थी। परमेश्वर ने आकर के हमें दृढ़ता के साथ ये बात जनाई कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहुत नहीं लगता डार। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमेश्वर ने कितनी गहरी बात कही, कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, कि मनुष्य जीवन एक कूप जानो, और जिस कूप में जल नहीं तो उसका नाम भले ही कुआं है, उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य वाले नहीं है। उस परमेश्वर ने आकर हमें याद दिलाया कि यदि कोई श्रद्धालु किसी से प्रेरित होकर के साधना भक्ति कर भी रहा है और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, मनमुखी आचरण कर रहा है, तो भी उसका जीवन यूजलेस, व्यर्थ है। पुण्यात्माओं, हमारा इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित जो हमारी भक्ति विधि साधनाएं थी, उन पर हम आरूढ़ थे।
पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हीं साधनाओं को किया करते थे जो हमारे धर्मगुरु हमें बताते रहे। और वो धर्मगुरु हमें ये भी कहते रहे कि हम तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं ये सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है, वहीं से हम आपको सुना रहे। वो पहले संस्कृत का वाक्य बोलते हैं, फिर उसका अनुवाद करते हैं। तो हम सोचा करते थे, जान लिया था हमने, मान लिया था कि हमारे जो धर्म के धर्मगुरु हैं ये बड़े विद्वान और संस्कृत भाषा के प्रकांड ज्ञाता है। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को बहुत अच्छी तरह समझा है और ये जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये सही है, सदग्रंथों वाला ही है। और फिर इस परंपरा को चलते लगभग 2000 वर्ष से भी ऊपर हो गया। जो भी एक दूसरे से मिलते हैं उसी, हम एक समुदाय बन गया हमारा हिंदू, तो जो भी बोलता है वही बताता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर है। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, स्वयंभू है। और मंदिर मूर्तियों की पूजा करना अनिवार्य है, सदग्रंथों में प्रमाण है। तो हम विद्यार्थी थे, हम तो एक डिवोटी थे, तो हमारे पूर्वजों को उन अज्ञानी धर्मगुरुओं पर अविश्वास नहीं हो पाया। अब जब परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी कि तुम शिक्षित बनो, परमात्मा ने हमें शिक्षित बनाया। नहीं तो चौथा युग आ गया, ये शिक्षा आम समाज में नहीं थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग इस शिक्षा का अधिकारी था। केवल संस्कृत भाषा हमारे भारतवर्ष में थी। कुछ वर्षों उपरांत फिर ये अरबी भाषा, उर्दू भाषा भी प्रवेश कर गई समय आने पर। लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो भाषा यानी विद्या मानी जाती थी, संस्कृत ही मानी जाती थी। तो संस्कृत के पढ़ने का केवल ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था, अन्य नहीं पढ़ सकता था, ऐसा प्रतिबंध था पहले। तो जिस कारण से हमने ये सोचा कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह सदग्रंथों को जाना है, जो इन्होंने ज्ञान दिया वो हमारे लिए मोक्षदायक है। अब हमारे ऊपर मेहर बख्शी परमात्मा ने, हम शिक्षित कर दिए और ये शिक्षा हमारे लिए हानिकारक भी है, पूरे विश्व के लिए, और हमारे लिए एक विशेष परोपकार भी है इस शिक्षा का। ये वरदान भी बन गई अब हमारे लिए कि हम सदग्रंथों से परिचित होकर के भगवान को पहचान लेंगे स्वयं आंखों देख। ये शिक्षा हमारे ऊपर अभिशाप बन गई। अभिशाप क्यों बन गई? क्योंकि हमने परमाणु बम बना लिए। जरा सी कोई बात उक चुक होगी, एक परमाणु बम छोड़ दिया तो लाखों व्यक्तियों को समाप्त कर देगा। उस क्षेत्र में वर्षों तक कुछ भी नहीं होगा। ये इस शिक्षा की देन है। दूसरे हम चतुर बना दिए, इतने कौवे बना दिए हम, बहन भाई से दूर, भाई भाई का झगड़ा, और हम अफलातून बन गए। बनना था हमने दास। हमारे पूर्वज देखो कितने शांतिपूर्वक रहा करते थे। 2 रोटी भगवान देता, झोंपड़ियों में रहा करते थे, कच्चे पक्के मकान बना करके शांत रहते थे। उनका जो पिछला दास को ने तो बहुत देखा है, क्योंकि 61वां वर्ष चल रहा है। उससे पहले के जितने भी बुजुर्ग देखे, कितना शांत स्वभाव होता था, निष्कपट होते थे, एक दूसरे के मदद के ऊपर तत्पर रहते थे। ऐसा दुराचार व्यभिचार नहीं था जो वर्तमान में आग लगी पड़ी है पूरे मानव समाज। तो ये शिक्षा का अभिशाप है हमारे, लेकिन ये अब वरदान बनेगी। परमात्मा ने इसका देना अनिवार्य समझा, इसलिए अब ये प्रदान की। नहीं तो पहले 4 युग हो गए, हम ऐसे अपना काम चल रहा था, ठीक है, टाइम पास ही तो करना था इस संसार में।
देखो गुरुजन होते हैं, गुरु का अर्थ यही होता है कि वो अपने सिलेबस को स्वयं जाने, फिर विद्यार्थियों को सरल करके समझावे। ये इन गुरुओं का काम होता है। तो हमारे धर्मगुरु ये नकली थे, ये अज्ञानी थे कलयुग के। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को समझा नहीं, अपने सिलेबस से ये परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम विभाजित होते चले गए। कहीं हिंदू बन गए, कहीं मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। और उसके बाद अब देखो कलयुग के इस थोड़े से ही समय में 100-150 वर्ष के अंदर ही कितने पंथ बना दिए, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। तो इस काल भगवान ने इन नकली गुरुओं के कारण, जो ना वेदों को समझ सके, ना पुराणों से परिचित, ना गीता से परिचित, इन्होंने लोक वेद सुना के हमें इतना कर्मकांड में फंसा दिया। आम व्यक्ति भी चिंतित हो गया, दुखी हो गया इनके कर्मकांड को करते करते। तो पुण्यात्माओं, इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे मूल मालिक हैं। हम इनकी संतान हैं। अपनी संतान की चिंता माता पिता को ही हो सकती है। दूसरे ठीक है, नेक आत्माएं हैं, थोड़ी बहुत देर हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो उनके साथ नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हम पर रहम आया कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, इन्होंने गलती तो की थी बड़ी भयंकर, फिर भी कहते हैं माता पिता बच्चों के सैकड़ों अवगुणों को भी माफ करने को तैयार रहता है यदि वो सुधर जाते। तो उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ आते हैं कि हो सकता है इनकी बुद्धि ठिकाना आगी होई बे और ये मान जा मेरी बात को और चल पड़े सतलोक को, जहाँ इनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। अब पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने ऐसा कमाल कर दिया, ये नकली पंथ चलवा दिए, सतलोक की महिमा गाने वाले और भक्ति बताने वाले। इनको सतलोक का पता नहीं, इनको उस परमात्मा की भक्ति विधि का ज्ञान नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके शांत बैठा दिए, निश्चिंत कर दिए। क्योंकि एक परंपरा पड़ेगी 100 वर्ष 150 वर्ष से, जो 50-60 वर्ष से कोई पंथ चल पड़ा, तो उसके बच्चे तो अपने माता पिता के साथ बचपन से ही वहां जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसा भी उन्होंने ज्ञान दिया उसको ग्रहण कर लिया, नो ऑब्जेक्शन। जैसा कि हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम अपनी परंपरागत साधनाओं को माता पिता के साथ जहाँ भी मंदिरों में जाते, तीर्थों पे जाते, हम उन्हीं को फाइनल मान लिया था और संतुष्ट थे। तो ये इतनी जटिल समस्या कर दी इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, मंडलेश्वरों और इन आचार्यों ने, कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है। सब अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। कोई कहता इन 5 नामों से मोक्ष है, कोई कहता हरे राम हरे कृष्ण से मोक्ष है, कोई कहता 3 नाम है, कोई 5 नाम बताता है, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन ये सतनाम आदि, कोई अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ये मंत्र दे रखे बच्चों के खिलौने। ये कई प्रमाण नहीं, किसी संत के इतिहास में नहीं जिन्होंने भगवान पाया हो, ना किसी ग्रंथ में, ना संत मते के इतिहास में संत मता परमेश्वर कबीर साहिब से चला। और ये सब संत मानते हैं, पंथ मानते हैं कि कबीर साहिब से पहले संत मता नहीं था। वो 600 वर्ष पहले से संत मता, और ये 100 वर्ष पहले से चला हुआ अपना मन मता, मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं ये लोग। तो इन सब का निवारण करने के लिए परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है।
अभी जो जितने भी गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं या कोई और मंडलेश्वर महंत है, ये परमात्मा के बच्चे बहुत अच्छे बच्चों में से हैं, यानी पुण्य आत्माओं में से हैं। और ये धनी थे भक्ति के, और ये काल भगवान का फंस गए। इस काल भगवान ने इनको अपने कब्जे में ले लिया, इनको इतना मिसगाइड और प्रभु बना दिया, इतना इनको मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया, अज्ञान बरवा दिया। और फिर इनका रिमोट अपने हाथ में रखता है। तो इन पुण्यात्माओं ने करोड़ों जीवों को अपने सदग्रंथों से हटकर लोकवेद सुना दिया। आप भी पाप के भागी बने, भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का इन्होंने भार सिर पर ले लिया। इनकी वो दुर्गति होगी, आगे चलकर देख लेना पुण्यात्मा। आप तो अभी नहीं समझ पाओगे इस अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि दास इस मार्ग का मास्टर है, अच्छी तरह इस सदग्रंथों को समझा है, परमात्मा ने ज्ञान दिया है, दिव्य दृष्टि यानी दास का ज्ञान योग खोला है। आगे चल के इन नकली गुरु मंडलेश्वरों, आचार्यों, शंकराचार्यों की वह दुर्गति होगी, इनको नरक में ठोका जाएगा। क्योंकि परमात्मा के विधान को त्याग कर अपना मता चलाना, ये संविधान तोड़कर चलने वाली बात है। तो संविधान का उल्लंघन करने वाला वो पाप का भागी और दंड का अधिकारी होता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी कपड़ा बुना करते थे, सूत होता था एक रील धागे की, वो इतनी मोटी हुआ करती, और वो धागा यदि उलझ जाता तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता था। एक तो ये ध्यान रखना पड़ता था कि ये इसमें कोई कट ना हो जा, कट लगने से फिर गांठ पड़ेगी, गांठ पड़ने से वो रेजा ठीक कपड़ा बना नहीं, और फिर उसकी कीमत नहीं मिले, वह दिहाड़ी मिले नहीं। जिस कारण से जुलाहे बहुत सावधानी से उनको सुलझाया करते थे। यदि 1 किलोग्राम सूत यानी 1 सेर सूत उलझ जाता तो 2-3 दिन लग जाते थे उसको सुलझाने में, तो उनकी 2-3 दिन की झाड़ी व्यर्थ जाती थी। और परमात्मा कहते हैं कि ये तो 9 मन सूत उलझा दिया, 1 मन में 40 सेर, 40 किलोग्राम। कहते इतना सूत उलझा दिया, यो अध्यात्मक मार्ग का 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वो ही लीला करने आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की, एक सतगुरु की। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है। आप इस अध्यात्म मार्ग के विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, ये दास टीचर है। और जिन टीचर्स के पास, जिन अध्यापकों के पास आप पढ़कर आए हो, वो अध्यापक नहीं थे, आपको कति अज्ञान से भर दिया। अब एक तो दया करना इस दास पे कि जो दास बोल रहा है उस बात को हृदय में समा लेना। समय बहुत थोड़ा है। परमात्मा कहते हैं कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर ले बेग संभार, यानी जल्दी संभल जा। और योग साधना या हठ योग और कान बंद करके कहते ये नहीं बने, केवल नाम आधार। आप जी ने जो ज्ञान सुना हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ है, उसको उससे आप रंगे हुए हो। तो अब दास चाहता है कि आपको ABC से शुरू करेगा,
क्योंकि एक सामूहिक एक शिक्षा स्थल है ये। इसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, प्रथम बार श्रोता भी आते हैं, और वो बच्चे भी, वो भी भक्त होते हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसा सत्संग किया जाता है जो सबके लिए सामूहिक असर करेगा। पहले वालों को भी ज्ञान बताया जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं, भक्त हैं, बहन बेटी हैं, उनको भी इसी के माध्यम से संदेश दिया जाएगा परमेश्वर का। तो परमात्मा ने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया, वो स्वयं आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। अपने आत्माओं, हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि, ये सबसे पुरातन ग्रंथ हैं अपने मानव समाज के। उसके बाद फिर अलग से, जैसे ईसाई धर्म, ईसा जी के पद चिन्हों पर चलने वालों को ईसाई कहने लगे। उन लोगों ने इन ग्रंथों को नहीं जाना। जो भी संदेश उनको आकाशवाणी से या किसी फरिश्ते से प्राप्त हुआ, उसी को सत्य मानकर उन्होंने आगे प्रचार प्रारंभ कर दिया। उनके आधार से फिर उनके अनुभव और आने वालों के अनुभव से एक पुस्तक बन गई, पवित्र पुस्तक, जैसे पवित्र बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, ये भी हजरत मोहम्मद जी को, जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, इनको जैसे कोई फरिश्ता आया, उसने ज्ञान सुनाया, आकाशवाणी हुई, या कुछ वे बोलते थे, वे आती हैं। वे कैसे आती हैं? जैसे कोई हजरत मोहम्मद कपड़ा ओढ़ कर लेट जाते थे और अंदर से फिर उसके शरीर से कोई आवाज आती थी, वो लिपिबद्ध की जाती थी, उसको वे बोलते। हम उसको कहते हैं, जैसे काल भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल गया, ऐसे ही कोई फरिश्ता उसमें प्रवेश करके इस कुरान शरीफ का ज्ञान देकर चला गया, उनको लिपिबद्ध किया गया। अब क्या हुआ कि हमारे जो पुरातन ग्रंथ थे, वेद और गीता पुराण, ये संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा को केवल एक ही वर्ग के पढ़ने का आदेश था, एक ही वर्ग इसको पढ़ सकता था, ब्राह्मण, जैसा कि आपको पहले बताया। तो वो इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, संस्कृत अवश्य जानते थे, अच्छे ज्ञाता थे, व्याकरण भी अच्छी शुद्ध बोलते थे, उच्चारण पर ही ज्यादा जोर देते थे, शास्त्रार्थ उनके आपस में ही होता था। किसी ने अशुद्ध व्याकरण भी बोल दिया, उसी पर ताड़ी पीट देते थे, उसको पराजित था और विजयी ऐसे ही किया जाता था। श्रोता जो होते थे वो अशिक्षित होते थे, जो संस्कृत भाषा जानते नहीं, और दो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान कहलाने वाले बैठ करके आपस में अपनी संस्कृत में ही भाषा बोला करते थे, शुद्ध उच्चारण के साथ। और जिसने अत्यधिक संस्कृत बोल दी, डाटा नहीं डटा, जिसने घनी घोट रखी हो, तो श्रोता उसको विजयी कर देते थे ताड़ी पीट के, और वो विजय सिद्ध हो जाता था, चाहे वो किसा अज्ञानी हो। ऐसे ये एक दूसरे में मंडलेश्वर सिद्ध हो गए, और इनको कख नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। तो आज दया करी भगवान ने, प्रथम तो ये रजा करी कि हमें शिक्षा दी, जो कि ना देनी चाहिए थी वो भी देनी पड़ी हमारे को इस नरक से निकालने के लिए। भले ही हम एक बार, अब जैसे बाल्टी निकालनी होती है कुएं से पानी, तो रस्से के बांध कर उसको कुएं में पटका जाता है, उसको डबोया जाता है पहले और फिर खींचा जाता है तो कुछ जल लेकर आए। तो ऐसे हमें परमात्मा ने इसमें डबोया, इस शिक्षा के अंदर,
और फिर इससे ये अनमोल रत्न निकाल कर हमारे सामने रख दिया। और अब हम किसी के दंत कथा पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने सदग्रंथों को ही आधार मानकर साधना भक्ति करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਰੇਰੂ ਪਿੰਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਗਤ ਜੀ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲਈ? ਭਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ 2013 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਈ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਭਗਤਾ ਕੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤਮਾਕੂ ਮਲ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਮਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤਮਾਕੂ ਮਲ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤਮਾਕੂ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਰੇ ਗੁੱਠਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਗੁੱਠਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਾ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਰੂਹ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਰਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਡੰਡ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਖੁਦ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣੀ 3 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗਏ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਭਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਭਗਤਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਹੈਂ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਆ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੀਰ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘ ਜੂ ਜੇ ਪੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਦਾ ਆ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਪਕੜ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ
ਤਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ 2-2 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਕਰਕੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, 6 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਧਾਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, 2-2 ਬੋਤਲਾਂ ਡੇਲੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਤਮਾਕੂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਤਮਾਕੂ ਖਾਧਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਛਡਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਭੋਪਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘੋੜਾਵਾਹੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਪਚਰੰਗੇ ਲਾਗੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਵਿਕ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ ਵਿਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਜੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਹੀ ਨੀਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਸਟਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਖਾਓ ਪੀਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਿੰਗਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਖੰਡ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੰਡਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਡਬਈ ਇੰਡੀਆ, ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਡਬਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਡਬਈ ਲਾਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ 2022 ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਪੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਦਾੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਸੰਤੋਖਪੁਰੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ EIC 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਘੜੀਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਰੀ ਆ, ਡੈਡ ਆ। ਨਬਜ ਵੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਡੈਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਭਗਤ ਜੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਡੈਡ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਦੀ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋਣੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਭਗਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ, ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੌਡ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਭੜਕ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਆਣ ਕੇ ਲਵੋ। ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੰਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਆ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।